Good morning, students. My name is Suhaswara, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we can study about the disaster management cycles and others. Now, see that. So, we can learn the disaster dimensions, यानी कि डिजास्टर्स की वजह से किस किस तरह से हमको इंजरीज होती है या हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है. सो फर्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रक्शंस टू द नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ यूजुअली द सर्व एंड मेनी ऑफ द सडन अनएक्सपेक्टेड एंड वाइडली स्प्रेड्स. देन आफ्टर द ह्यूमन इफेक्ट लाइक द लॉस ऑफ life, injuries and hardships. Then after we can see that the effect on the social infrastructure such as the destructions of damage of the government systems, buildings and communications and essential services. Then after the community needs, so क्या required रहती है? The shelters, foods, clothing, medical assistance and the social care. So these are the basic requirement. Then after we can see that the disaster occur in the variety forms. Some are the periodic, some are the annual and some are the sudden and unexpected. So here we can here we here I put the one table and the durations. For example, if the floods are days or weeks, then after if I talking with the earthquake, so second and minutes ज़्यादातर नहीं होता है, मिनट्स या सेकंड में ही होता है. जब साइक्लोन की बात का है तो वो डेज तक चल सकता है. एंड ट्रक की बात आए तो ट्रक मीन्स सूखा हो, उसकी बात आए तो मंथ की बात है कि मंथ तक चल सकता है. सो दिस आर द ड्यूरेशंस. देन आफ्टर we can see that the effects, death and disability increase in the communicable disease, then physiological food shortage, then after environmental disturbance and etc. Then after we can also study about the what is the difference between the hazards and disasters. Hazard means the natural event while the disaster is a consequence. जो हज़ार्ड्स होता है वो नेचुरली जो इफ़ेक्ट्स होती है उसको कहते हैं. और डिज़ास्टर मीन्स जो मेन मेड भी हो और नेचुरल भी हो. सो हज़ार्ड्स इज़ द perceived natural event which the treat the both the life and property, and the disaster is the realizations these hazards. Hazards have the potential to kill and destroy, and the disaster certain case the destructive of life and infrastructure. यानी कि अर्थक्वेक है तो वो लाइफ्स को डिस्टर्बेंस कर सकती है या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कर सकती है. Hazards are the natural phenomenon and the disasters could be natural as well as man-made. When the hazards involve the event of risk, vulnerability and the capacities, they can turn into the disasters. So these are the basic difference. Then after we can see the stages in the disaster management. So disasters management efforts are greater towards the disaster risk management. So the disaster risk management means implies the systematic process of using the administrative decisions, organizations, then operational skill and capacity to implement the policies, strategy and कॉपिंग द कैपेसिटी. यानी कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट वो है कि जो ऑर्गेनाइजिंग और सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन हो, उसके लिए जो पूरा मैनेजमेंट किया जाता है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं. देन आफ्टर वी कैन सी दैट देर आर द बेसिक 3 स्टेज: बिफोर डिज़ास्टर, ड्यूरिंग द डिज़ास्टर एंड आफ्टर द डिज़ास्टर्स. देन आफ्टर वी कैन सी दैट द disaster cycle, there are the basic 4 main cycles. First of all, the first phase is preparedness for the phase, then after the response of phase, recovery phase and the mitigation phase. Okay,
Now the responsibility, what is the responsibility during the disasters? For example, the include the actions taken to save the lives. Then after it is the implementation of the action plan, activities during the disasters, then public warning systems, the response phase includes and others. Then after the recovery phase, here the recovery phase activities follow the disasters. Then after the temporary housing claims and others, the aim of the recovery phase is to restore the effects and actions plans. Then after the disaster preparedness, and last one is the major disaster arise in the India in 1980 to 2011. यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो कि 1980 से लेके 2011 तक अलग अलग जगह पे कौन कौन सी डिजास्टर्स हुई थे. सो दिस आर लर्न इन द लास्ट लेक्चर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द पैराडाइमिक शिफ्ट, जिसका हमने सिर्फ इंट्रोडक्शंस दिया था कि पैराडिगम शिफ्ट इज थिंकिंग एंड द फोकस फ्रॉम relief centric approach to more protective holistics and the integrated approach for the management of the disasters through to improve the disasters. यानी कि हमारा जो डिजास्टर के बारे में जो थिंकिंग है उसको डिस्ट्रक्टिव करता है, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं पैराडिगम शिफ्ट. सो उसके बारे में था थोड़ा इन्फॉर्मेशंस के फॉर दी whether or not in the emergency exists. Then after the demographics of the affected populations, then details of the emergency, the conditions of affected populations and etc. Now the today's topic is introductions of paradigmic shift in the disaster management and the risk assessment, management and mapping. Now start with the paradigm shift is the meaning of the paradigm shift is the fundamental change in approach or underlying of assumptions. यानी कि जो फंडामेंटल्स जो चेंज है उसको ध्यान में रख के हम जो नया सिस्टम डेवलप कर सकते हैं वो है. नाउ the paradigm shift is the change in the way of thinking, the transportations in the thinking influenced by the agents or change, and also the occurrence through the process of evolutions. This one is the historically disaster management has been our active process. So this one is basically we can see that in paradigmic shift management. Okay, so in the term the disaster risk reductions is used to mention the such a measurement. So now we can study about the यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द पैराडाइमिक शिफ्ट is in the fact focus on the implementations this risk reductions measurement. यानी कि जो रिजल्ट मेजरमेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एप्लीकेबल करते हैं. सो इट इज़ द शिफ्ट इन द अप्रोच फॉर्म. इट इज़ द शिफ्ट इन अप्रोच फॉर एग्जांपल्स द रिएक्टिव अप्रोच वेयर actions are taken after the disaster occurs. For example, providing the humanitarian assistance and the relief and etc. And the second one to approach or the proactive approach where the holistic integrated planning and management of the disaster environment. So it means that the example for this, so proactive the approach is the building systematic protected structures, creating the legislations, then framework and guidance or the disaster management,
यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि एक ऐसी गाइडेंस बार रखेंगे कि जिसको अगर इस ड्यूरेशन में बाहर कहीं पे जाना है या उसकी पूरी प्रिपरेशन, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि पूरे अनलॉक करने के बाद वो जो एक पूरी गाइडेंस होती है कि किस तरह से करना है वो हम करेंगे। देन आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स एंड रिस्पॉन्स द फोर्सेस, यानी कि जो वहाँ पे इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it aims at addressing the root causes of the prospective disasters rather than addressing the stress and shock arising after the disaster. For example, Indonesia is seismically active and prone to earthquake, यानी कि जो इंडोनेशिया है उसमें उन लोगों ने पूरी गाइडेंस दी है कि अर्थक्वेक वहाँ पे ज़्यादा होता है तो किस तरह से करना है। So these are the for the guidance for the disasters occurs. Yes, the next one is the pre-disaster preparedness. So pre-disaster preparedness means the pre-disaster management preparedness, all the phases of the emergency management depends on the data फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि अगर अभी जैसे कि हमने 2 ऐसे डिज़ास्टर्स देखे, यानी कि एक साइक्लोन है, जो साइक्लोन में क्या होता है कि हम पहले से ही उन पे डेटा पे हम पूरी एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो डेटा है वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। देन आफ्टर जो एक हुआ था 2 महीने के पहले, जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नज़दीक से गया था लॉकडाउन के ड्यूरेशंस में, तो वो यानी कि उसके पूरे कैलकुलेशंस अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। देन आफ्टर द एप्रोप्रिएट डेटा हैज़ बीन ग्रेदर ऑर्गेनाइज एंड द डिस्प्ले लॉजिकली टू द डिटरमाइन, यानी कि द साइज एंड द स्कोप ऑफ द एमरजेंसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्ले, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो एस्ट्रॉइड था वो के लिए नासा ने या ऐसे एक के लिए पर्टिकुलर कोई एक संस्था ऑर्गेनाइजिंग थ्रू नहीं मिला था, अलग अलग जगह से हम कैलकुलेट करते हैं कि आएगा नहीं आएगा। दैन साइक्लोन में भी होता है, तो उस पूरी कितनी साइज़ का है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो वो जो इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है कि नहीं करनी है वो पूरे मैनेजमेंट करना पड़ता है। Then after during the actual emergencies it is the critical to have to write data at the right time and to respond and take the appropriate actions. So जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तब बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रॉपर वे डेटा मिलना, यानी कि जो जैसे कि अभी कोरोना की बात करें कि कोरोना को डिटेक्ट होने के बाद बहुत टाइम लगता है उसकी वैक्सीन के लिए, जैसे कि हमने देखा। सो राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड, अगर हम स्टार्टिंग में ही यानी कि जब कोरोना आया था तब से लेके अब तक हमने जो प्रॉपरली मेंटेन किया होता तो इतना नहीं होता। एंड राइट एक्शंस, कि भाई चलो हो गया है तो क्या एक्शन लेने चाहिए, जो अलग अलग अभी स्टेट में चल रहा है वही। देन आफ्टर द एनर्जी इमरजेंसीज कैन इम्पैक्ट ऑल और नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट में नहीं नंबर ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करनी पड़ती है। देन आफ्टर द इमरजेंसी पर्सनल ऑफ्टन द नीड डिटेन द इंफॉर्मेशंस कंसर्निंग द पीपलिंग एंड बिल्डिंग लेआउट, electrical disturbances and others for the system. So these are the pre-disaster preparedness systems. Now the talking with the disaster risk assessment. So disaster risk assessment means हमको पहले ये पता होना चाहिए कि what is the disaster risk. So disaster risk यानी कि डिज़ास्टर्स आने से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि क्या क्या रिस्क हो सकता है उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। यानी कि रिस्क असेसमेंट इज़ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द
potential of hazards and the analysis what could happen if the hazard occurs. The business impact analysis is the process for the determining the potential impacts resulting from the interruptions of the time sensitive or the critical business process. यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितनी स्ट्रेंथ है उसमें और कितनी चीज़ों को डैमेज कर सकता है वो, और पूरा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। उसको बोलते हैं कि बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ता है कि जहाँ पे जो प्रोसेस होती है जो कितने इम्पैक्ट की है, पोटेंशियल कितने इम्पैक्ट का है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, दैन कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती है और सब कुछ। देन आफ्टर देयर आर दी numerous hazards to consider, and for each hazard there are the many possible scenarios that could unfold depending on the timing, magnitude and locations of the hazards। यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है, जितना भी हमारे पास जितने भी हज़ार्ड्स हुए हैं या जितनी भी आपत्ति आई है उसमें पूरी वो पूरा हम सर्वे करते हैं कि जिसमें पूरी वैल्यूज़ को उसकी कितनी मैग्नीट्यूड था, उसने कितने उस मैग्नीट्यूड में कितने इफ़ेक्ट हुए हैं, वो पूरा सर्वे करके हमको ये पता चलता है कि अभी जो आ रहा है, जो आपत्ति आ रही है वो क्या क्या डैमेज कर सकती है। एंड द रिस्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन कोसिक्वेंस और द एक्सटेंडेड लॉसेस, यानी कि डेथ, इंजरीज, प्रॉपर्टीज, लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ disrupted or the environment damage resulting from increasing between the natural or the human included hazards and the vulnerable conditions. So these are the disaster risk assessments. Now this one is basic graph के risk probability of losses, यानी कि रिस्क का रिस्क और जो कैलकुलेशंस हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं वो किस तरह से कंसिडर की जाती है। सो इफ़ आई कंसिडर फॉर द फर्स्ट वन इज़ द हज़ार्ड्स, सो टेम्पररियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द हज़ार्ड्स एंड द एनुअल प्रोबेबिलिटी इज़ 1 upon रिटर्न ऑफ पीरियड, यानी कि दिस टाइप ऑफ हज़ार्ड्स फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रक्टिंग फ्लो, देन फ्लैश फ्लूड, रिवर फ्लूड जो जनरली आता है। देन आफ्टर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्यूरेशंस, ऑनसेट टाइम, देन हज़ार्ड इंटरेक्शंस एंड etc, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि हमको पता है कि इस टाइम में जैसे कि बहुत बारिश आने की वजह से, जो मॉनसून सीज़न है वहाँ पे बारिश आने की वजह से हमको पता है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो सुनामी आने की चांसेस है ही। देन हम जब कच्छ की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर बारिश नहीं होती है तो ड्रग यानी कि सूखा पड़ने के चांसेस रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही है। देन द हज़ार्ड इज आइडेंटिटीज इज द स्पेशल देन डिस्टर्बेंस ऑफ द डैमेजिंग द इफेक्ट्स। देन आफ्टर वी कैन से दैट द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द vulnerability, so the degree of loss of the specific type of the element at which given the intensity of the given hazard scenario। so जो कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी इफ़ेक्ट होगी उसके जो पूरा एलिमेंट यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट हम करते हैं उसके है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोकस हियर द फिजिकल वेनरेबिलिटी, यू कैन सी दैट द वीकर्स एंड द स्ट्रॉन्गर्स, ज़्यादातर वो इफ़ेक्ट किस तरह से होता है तो उसके बारे में हम बोलेंगे कि एलिमेंट एट रिस्क क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। द क्वालिफिकेशंस ऑफ द एक्सपोज द एलिमेंट इज रिस्क, फॉर एग्जांपल पीपल्स, नियर द पीपल्स, buildings, then mineral values। it means that this type of the element risk is the people, building and another one is the affected, जो strongly होता है वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। then temporarily variations of the element at risk, यानी कि पॉपुलेशंस सिनारियो, अगर बिल्डिंग्स कॉलेप्स होती है तो पॉपुलेशंस पे इफ़ेक्ट, यानी कि
वहाँ पे रहने के या बिल्डिंग के आसपास को जो लोग होते हैं उनको इफ़ेक्ट होता है। द स्पेशल लोकेशंस यानी कि पॉइंट्स दैन लाइंस एंड पिलोजनीज, तो वो ये जो सब कुछ मिला के यानी हम ये कह सकते हैं द एक्सपोज दैन द स्पेशल ओवरले ऑफ द हजार्ड्स फुटप्रिंट्स एंड द एलिमेंट एट अ रिस्क लोकेशंस। सो इन सभी को मिला के जो हम कैलकुलेशंस करते हैं कि हज़ार कौन कौन से टाइम या ड्यूरेशंस में होगा, कितनी कैपेसिटी में होगा एंड दी उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे या कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो पूरा कैलकुलेशंस हम करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क। एंड रिस्क इज़ वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉसेस, कि इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करके क्या क्या लॉस हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, वो यहाँ पे इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन हो सकता है। देन आफ्टर द ऑब्जेक्टिव, यस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क असेसमेंट इज द पर्पस ऑफ द रिस्क असेसमेंट इज टू डिटरमाइन द वेदर देयर इज एनी लाइकहुड ऑफ द पोटेंशियली हजार्ड सिचुएशन कॉजिंग द डेथ। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम इतनी कैपेसिटी है उस आपत्ति में कि ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग मर जाए। देन इंजरीज, इलनेस एंड डिसीज ऑफ द टू द पीपल इन द वर्क प्लेस एंड नेबरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि उसमें हम असेसमेंट करते हैं कि अगर कोई इंजरी ज़्यादातर हो सकती है या ऐसे कोई बीमारी हो सकती है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे और उसके एनवायरनमेंट को कुछ इफ़ेक्ट हो सके। देन हाउ सर्व दिस द रिस्क इज़, यानी कि इस रिस्क में किस तरह से सर्वाइव करना पड़ेगा। वेदर द रिस्क नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड हाउ द अर्जेंटली, यानी कि जो रिस्क है वो किस तरह से कंट्रोल करें और कितनी जल्दी करें। सो वो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना। आफ्टर असेसिंग ऑन इवोल्यूशंस ऑफ द आइडेंटिफाई द रिस्क, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन विच वन आर द मोस्ट सीरियस, यानी कि अगर आपत्ति आ जाती है तो उसमें से सबसे पहले स्टेप ये है कि कौन ज़्यादातर सीरियसली अफेक्ट हुआ है। देन आफ्टर प्लान द एक्शंस नीडेड टू कंट्रोल द रिस्क इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एंड फ्रॉम द मोस्ट सीरियस, यानी कि जो ज़्यादातर सीरियस है उसकी प्रायोरिटी हमको फर्स्ट लेना है। एंड द लास्ट सीरियस रिस्क ऑफ द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, और कौन कौन अब जो डैमेज हो सकता है या जिसको ज़्यादातर सीरियस प्रॉब्लम है वो तो हमने उन लोगों को सेव कर दिया, पर अभी दूसरे के बारे में बात करें कि कौन सी लाइफ को ज़्यादातर रिस्क हो सकता है तो उसको, या कौन सी प्रॉपर्टी को हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जैसे कि जो अभी एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशंस था, तो दिल्ली में हमने सुना था कि अल्टरनेटिव व्हीकल्स यानी कि ऑड इवन व्हीकल्स स्टार्ट करने। देन आफ्टर कई बार कई लोगों ने ऐसा किया था कि भाई ओनली यूज़ फॉर दी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है, वही ज़्यादातर यूज़ करें। तो उस बेसिस पे पूरा रिस्क असेसमेंट होता है। सो दिस वन इज़ द बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, यानी कि द फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स एंड डिपेंड एंड द गोल ऑफ द रिस्क असेसमेंट। देन आफ्टर वी कैन डिज़ायरेबल द सिस्टम, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, द प्रोसेस डायग्राम, हम प्रोसेस डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशंस हो, केमिस्ट्री है, देन थर्मोलॉजिकली है, एंड ऑपरेशन एंड द प्रोसीजर्स। देन आफ्टर वी कैन आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, कौन किस टाइप का हजार्ड्स है। जैसे कि अभी कोरोना है तो हम ये नहीं बोल सकते कि केमिकल थ्रू है, यानी कि एयर पॉल्यूशन थ्रू आ रहा है, तो एनवायरमेंटल है या ह्यूमन मेड है, तो वो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन आफ्टर द एक्शंस एंड द सिलेक्शंस ऑफ द इंक्लूडेंट्स, यानी कि द लिस्ट ऑफ द मेजरमेंट इंक्लूड्स, देन आफ्टर द लिस्ट ऑफ द सीरियसनेस एंड द इफेक्ट्स। नाउ उसके बाद हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एस्टीमेट
फ्रीक्वेंसीज एंड द एस्टीमेट कोसिक्वेंसेस, यानी कि कितना टाइम ड्यूरेशंस लगेगा उस पर डिपेंड है। जैसे कि इसकी हिस्ट्री है, देन आफ्टर हम कौन कौन से फॉल्ट है वो देखेंगे। अगर हम कोसिक्वेंस यानी कि ज़्यादातर आता है तो उसमें एक्सपेंसियंस हिस्ट्री उसमें भी देखेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ मॉक, उस भी मॉक करेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक की मॉक होती है कि अगर धरतीकंप आता है यानी कि भूकंप आता है तो किस तरह से लोगों की जान बचाई जा सकती है। देन आफ्टर दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देन आफ्टर वी कैन द रिस्क एस्टिमेशंस, कितना रिस्क है, एंड द एक्सेप्टेबल रिस्क ओरिएंटेबल, यानी कि कितना रिस्क है और कितना रिस्क को हम उठा सकते हैं, ले सकते हैं। देन द स्टैंड्स एंड द कंपनीज पॉलिसी, यानी कि हम अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे। देन आफ्टर द रिस्क असेसमेंट एज पर द नीड, जितनी रिक्वायरमेंट है उस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर द डिस्क्रिप्शंस फॉर द एक्सेप्टेंस, अगर जो रिस्क है यानी कि जो आपत्ति है उसका हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेशंस करें, हाँ हो गया है हमारे पास सब कुछ आ गया है कि रिस्क असेसमेंट हो गया है कि कौन किस टाइप का है, उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, कितनी इफ़ेक्ट कर सकता है, कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है, कौन सी चीज़ को अफेक्ट करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, लाइफ को अफेक्ट करेगा, क्या इंजरी होगी। अगर पूरा हो गया है देन आफ्टर दी ओके, अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। So these are the flow chart for the risk assessment process. Now talked with the tools for conducting the disaster risk assessment. कौन कौन से tools है? The first one is the national risk assessment, is the strategy risk assessment that supports the design of national disaster management strategies, which policies and regulations, यानी कि NDM प्रोग्राम एंड द बजट अलोकेशंस, यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो एक टूल्स है कि जिसमें हमको पूरा बजट अलोकेट करना पड़ेगा उसके लिए। देन आफ्टर द लोकल रिस्क असेसमेंट इज एंड द ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट फॉर द NDM एक्शन प्लानिंग, कोसिक्वेंस प्लानिंग, देन प्री डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड अदर्स, यानी कि NDM हमको पूरा असेसमेंट करके हमको प्लानिंग देगा, किस तरह से उसको प्लानिंग को फॉलो करना है, डिजास्टर्स के पहले क्या करना है, उसके ड्यूरेशन में क्या करना है, वो पूरा प्लानिंग NDM हमको देगा। देन आफ्टर द बिल्डिंग नेशनल डिजास्टर ऑब्जर्वेशन, यानी कि NDO के जो नेशनल डिजास्टर ऑब्जर्वेशंस है उसके थ्रू हमको सारी जानकारी मिल सकती है। देन आफ्टर द रिस्क मैनेजमेंट, what is the risk management? Basically risk management is the combination of the risk assessment and the risk reductions, यानी कि control. So risk analysis and the evolutions, risk analysis, evolutions and the reductions make the integrated component of the risk management. You can see that the protocol of the risk management and the risk evolutions must be रिफ्लेक्टेड प्रोसेस टिल इट कम्स टू द एक्सेप्टेंस इन द लेवल, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क असेसमेंट आ जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट मीन्स द फर्स्ट वन इज रिस्क एनालिसिस, इट मीन्स द स्कोप एंड डेफिनेशंस, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड द रिस्क एस्टिमेशंस। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ तो रिस्क इवोल्यूशंस, तो रिस्क इवोल्यूशंस में कंसिडर होगा द रिस्क टॉलरेबिलिटी, यानी कि कितनी मैग्नीट्यूड है उसकी, एंड द एनालिसिस ऑफ द ऑप्शंस, के उस हजार्ड्स में कौन कौन से एनालिसिस है। जो हमने अभी देखा कि जो रिस्क असेसमेंट हमने देखा वही है, और उसके ऐड करना है हमको द रिस्क रिडक्शंस और कंट्रोल, यानी कि डिसीजंस मेकिंग होना चाहिए, क्या डिसीजन करना है। देन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशंस, कौन सी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है, ऐसी क्या, एंड द मॉनिटरिंग, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको मॉनिटरिंग करना है कि उसकी इफ़ेक्ट या कंट्रोल हुआ है कि नहीं है। सो इस पूरी सिस्टम को हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। नाउ द अनदर पार्ट इज द प्रेशर्स एंड रिलीज मॉडल। सो प्रेशर एंड रिलीज मॉडल क्या है वो हम देखेंगे। सो प्रेशर्स एंड द रिलीज मॉडल, यू कैन सी दैट
The based on the conceptual ideas, it means the disaster is the impact of the natural hazards upon the vulnerable peoples. So the PAR यानी कि प्रेशर्स एंड रिलीज मॉडल वर प्रपोज्ड, यानी कि जो डिज़ास्टर जो वैल्यूएबल पीपल है, जहाँ पे डिज़ास्टर की वजह से या हज़ार्स की वजह से जो इम्पेक्ट होता है उसके बारे में जो पूरा मॉडल हम बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट्स करता है. देन द PAR मॉडल कंसिडर द डिज़ास्टर एज द इंटरैक्शंस ऑफ द टू options for saying there are the two main parts, the process which create the vulnerability and second one is the hazards or the natural process. So हम बात करेंगे that what is the pressures and the release. The opposing forces build यानी कि pressures and the within the creasing and the pressures building from the each sides. This is the hazard event turns into the disasters. And the release idea is the incorporated to conceptualize the reductions of the disaster. That is the relieve the pressures and vulnerability has to reduce. यानी कि pressures means अगर disaster आता है तो क्या इफ़ेक्ट होती है, and the release means उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको रिलीज बोलते हैं. सो दीज आर द प्रेशर्स एंड रिलीज मॉडल. यू कैन सी दैट. सो फर्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग ऑफ द वल्नरेबिलिटी, यानी कि फर्स्ट वन इज द रूट कॉजेज. कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि पावर है, देन स्ट्रक्चरलेस है, रेस्क्यू करना है, या देन आइडियोलॉजिकली बात करें तो political systems and then economics है. then after the we can discuss the dynamic pressures. अगर pressures dynamic type का है तो lack of the training and the lack of the instrument pressures freedom, यानी कि सबको ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी अर्थक्वेक के लिए या ऐसी आपत्ति के लिए पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है कि जो पूरी ट्रेनिंग देते हैं एजुकेटेड पीपल को और जिन लोगों को चाहिए. देन आफ्टर द लोकल इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जैसे कि कुछ फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर द माइक्रो फोर्सेस है तो रैपिड पॉपुलेशन, देन चेंज, देन रैपिड अन डिजास्टर्स एंड डिस्क्रिप्शंस. एंड द लास्ट वन इज द अनसेफ कंडीशन. कौन कौन सी अनसेफ? द फिजिकल एनवायरनमेंट, देन लोकल एनवायरनमेंट, social relations and the public actions. So these four are the unsafe conditions for the disaster. So disaster risk is equal to hazards into the vulnerability. So what is the hazards? तो natural hazards जो भी है, earthquake है, flooding है, landsliding है, then volcano है and etc is combinations for these, यानी कि ये सभी कुछ जो भी hazards and जो भी root cause कर रहे हैं वो सारे द प्रेशर एंड रिलीज मॉडल्स में रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट होता है. यस. नाउ द लास्ट इज द डिजास्टर रिस्क एंड द क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम साइकिल. सो हियर यू कैन सी दैट द न्यू अप्रोच प्रोसेस फ्रॉम द कन्वेंशनल दैट डेवलप कैन नॉट बी सस्टेन अनलेस डिजास्टर मैग्नीट्यूड इज बिल्ड इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस. यानी कि इस प्रोसेस एक नई ऐसी हमने डेवलप की है कि जो पूरी सिस्टम या सुटेबल जो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल देखी उस पर डिपेंड्स है. द फोकस इज नाउ मोर ऑन द डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस एंड द मैग्नीट्यूड, एंड दिस पैराडाइम शिफ्ट reinforce that disaster can be managed through the adequate planning and the preparedness for the response. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are the one cycles for one other half part is the risk management and the other one is the क्राइसिस मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट यानी कि हम कौन सी जो असेसमेंट करते हैं पूरा कि जो भी डिज़ास्टर आ सकता है और उसके लिए जो हम प्रिपेयर्डनेस करते हैं वो, और द
क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि क्राइसिस में कौन कौन सी इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकती है, यानी कि इकोनॉमिक इफेक्ट होती है या ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है, उसको किस तरह से रिकवरी करें, यानी कि पहले हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं एंड देन आफ्टर द किस तरह से उसको रिकवरी कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक द डिजास्टर रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट साइकिल्स. नाउ here we can explain that the preparedness. So this protective process embraces measures which enable the governments, communities and individuals to respond rapidly to disaster situations to the scope. In the mitigation system, यानी कि पहले हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे और उसके बारे में मिटिगेशंस किस तरह से डिडक्शंस करना है. एम्ब्रेस द मेजर टेक to reduce both the effect of the hazards and the vulnerable conditions. It means that in order to reduce the scale of the future disasters, therefore the mitigation actions can be the focus on the hazard itself or element exposed to the threat. यानी कि यहाँ पे हम किस तरह से डिज़ास्टर को रिडक्शंस कर सकते हैं, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए. Then after the last one is the disaster risk mapping. So what is the disaster risk mapping? The risk mapping is the process of establishing the spatially and the temporally extent of the risk. यानी कि स्पेशल हो सकता है, यानी टेम्पररी रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है और मैपिंग का हो सकता है. The result of the risk mapping are usually presents in the form of the map that shows the magnitude and the nature of risk. यानी कि रिस्क मैपिंग का रिजल्ट हमको वो एनालिसिस दिखा सकता है जो हमको चाहिए, जैसे कि कितनी उसकी मैग्नीट्यूड है और क्या इफेक्ट हो सकती है. देन द रिस्क मैपिंग रिक्वायर्स द कंबाइनिंग मैप्स ऑफ द हजार्ड्स, एक्सपोज एंड वल्नरेबिलिटी एंड द average frequency of the occurrence and the locations of the most extreme events. Now the map of the zone surrounding the hazards, factories and the route used in the transport hazards materials. यानी कि यहाँ पे हम मैप थ्रू पूरा जोन का सराउंडिंग किस तरह से आपत्ति हो सकती है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ है या रूट है, ट्रांसपोर्ट हजार्ड्स है या कौन कौन से हजार्ड्स है, उस पर डिपेंड कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट एंड द स्केल ऑफ द पॉसिबल हजार्ड्स एंड द डिटरमाइन द मेथड ऑफ इवोल्यूशंस और अदर इमरजेंसीज रिस्पॉन्स इफ लीक और द एक्सप्लोर द अकर्स. यानी कि किस टाइप की आपत्ति है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको किस तरह से रिडक्शंस करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करें, यानी कि किस तरह से इमरजेंसी हम कर सकते हैं या है या नहीं है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दिस आर दी रिस्क मैपिंग. हियर यू कैन सी दैट द रिस्क मैपिंग ग्राफ और द फ्लो चार्ट्स. So today's your assignment, the worksheet questions is first two questions. Define the terms paradigmic shift and the risk assessment, and what is the meaning by the risk management. These two questions are for the worksheet questions, and explain the pre-disaster preparedness, explain the risk assessment process, and what is the meaning of the risk mapping and explain it. These three questions is your assignment questions, and your Google Sheets worksheet name is your name, your enrollment number, name, unit 3 and the worksheet 13. If any query regarding this topic, you can call me, and if any question regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number in your screen. Thank you.